Yeah. So probability basic definition is favorable outcome on total outcome, right? And not E is also unfavorable by total. The first thing in this, before we understand Bayes theorem, is that Bayes theorem is also called reverse probability. I'll tell you why. The first is probability of, or say total probability. Theorem of total probability. Right? Let's try to understand what is the meaning of theorem of total probability. If let there are events E1, E2, E3, En such that E1 intersection E2 is a null set, the empty set or empty probability 0. E2 intersection E3 null set, and so on. En minus 1 intersection En. So the meaning of intersection, nothing is common. Right? And let A be a element of sample space. Then find the probability of A. Then probability of A will be given by probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 A by E2 probability of En into probability of A by En. When we say total outcome, this is theorem of total probability. And I am 101% sure I did not understand anything. है ना? नहीं समझ आया? होता है ऐसा, बुक का डेफिनेशन कभी समझ नहीं आता. अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. सपोज एक घर है, कोई मिस्टर अंबानी का घर है, and there are rooms. First is E1, E2, E3, E4, E5, and so on, En, right? N number of rooms are there, right? And then his son अनंत, वो जाता है एक रूम में छिप जाता है, एक रूम में ऐसे में छिप जाता है, कोई भी रूम ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसलिए इंटरसेक्शन 0 है. अनंत यहां से किसी में चुप जाके छुप गया. मिस्टर अंबानी ने जाके नौकरों से बोला कि गो एंड फाइंड हिम आउट, गो एंड फाइंड हिम. सो in this entire process, what is going to happen? A is Anant, right? E1, E2 are your rooms, right? So अगर एक नौकर को भेजूंगा तो नौकर कैसे जाएगा अंदर? सबसे पहले एक रूम में जाएगा, E1 में गया, देखा क्या अनंत E1 में है. So when I write something in this form, right? When I'm writing in probability, if I'm writing something in A by E1 form, that means ये इवेंट हो गया. उसके बाद A की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो E1 में घुस गया, अब उसमें अनंत के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऐसे लिखते हैं. तो नौकर क्या करेगा? पहले रूम में जाएगा और ही विल गो टू सेकंड रूम, और मींस एडिशन.
go to second room and then check whether Anant is there or not, or go to third room and check Anant is there or not, or go to fourth room and check whether Anant is there or not, and go to nth room and check where Anant is there or not, right? This is how the whole process, वो ऐसे ही सोचेगा कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं मुझे. This is called theorem of total probability. ये नीचे आता है, ऊपर क्या आता है? फेवरेबल आउटकम. इसी में कोई एक ऐसा केस होगा जहां पर वो रूम के अंदर मिल जाएगा, किसी एक रूम में तो होगा वो. So if I say find the probability in the same question, find the probability of finding Anant in room 2, that means E2. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? फेवरेबल बाय टोटल. फेवरेबल में व्हाट यू नीड, ये वाला इसी रूम में चाहिए ना तुमको, सेकंड रूम में. तो दिस विल कम इन न्यूमरेटर. yes or no? So give you probability of E2 into probability of A by E2 by total probability. What is the total probability? This one, P of A, which is given by P of A1 into probability of A by E1, or probability of E2, probability of A by E2. On probability of En, probability of A by, right? So this is called, this is what? Probability of finding Anant in what room? Room 2, right? यहां कैसे लिखेंगे? हमको क्या मिल गया? अनंत मिल गया. अनंत अब मिल गया, किस में मिलना चाहिए? E2. तो ये दिस इज हाउ यू राइट इट. मतलब यहां जो लिखा है एग्जैक्टली उल्टा लिखना है इसका. अब व्हाई दिस इज कॉल्ड रिवर्स प्रोबेबिलिटी, आई विल टेल यू द रीजन, राइट? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यू अंडरस्टूड, राइट? एग्जांपल से समझ आया. इसका एक और मेथड है ट्री डायग्राम. 12th स्टैंडर्ड में भी बोर्ड में के क्वेश्चंस आते हैं. नहीं, प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम, also called reverse probability. Why it is also called reverse probability, I'll tell you the reason. That's a very important thing, but because ZAT will also ask question on this. ZAT has asked questions on this. In fact, all the exams, all जो इंटरव्यूज होते हैं क्वांट वांट के, सब उसमें ये पूछते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग है. तो वो एग्जाम्पल से तुमको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाता है, राइट? अगर बुक में क्या ऐसे लिख के बता दिया, वैसा एग्जाम्पल देंगे तो यू विल बी एबल टू रियलाइज, मतलब समझ पाओगे कि हाँ करना क्या चाह रहा है. इसी में क्या ट्री डायग्राम होता है, ट्री डायग्राम से भी क्वेश्चंस आते हैं. Right? Noted on this. Why this is called reverse probability? तो यही था, एक बंदा इसने सोचा कि डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी तो होती है, रिवर्स भी हो सकती है क्या? तो जब तुम बैक टेस्टिंग करते हो किसी डेटा की, हमने बैक टेस्टिंग करके एक नाम सुना होगा तुमने. जब हम लोग बैक टेस्टिंग करते हैं, जब बैक टेस्टिंग करते हैं डेटा की, तब रिवर्स प्रोबेबिलिटी बहुत काम आता है. तो बैक डेटा एनालिसिस करते हैं पीछे जाके, कहते हैं लर्निंग फ्रॉम पास्ट. हम कहते हैं जब ये कुछ इवेंट हो चुके हैं पहले, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन हुई थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जैसे पहले लड़ाई हुई थी तो स्टॉक मार्केट गिर गया था, इस बार भी लड़ाई होगी तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट गिरेगा.
So that's called big back data analysis. Now it is called reverse probability. I tell you because direct probability से थोड़ा सा अलग हो जाता है. Why it is? So suppose if I say there are two bags, right? If I say there are two bags, there are two bags, P1 and B2. Has let's say 4 red balls and 7 white balls, and it has 5 red balls, let's say 8, right? Something is given to you. So if I ask you to simply find the probability of a red ball, right? If I ask you to pick up a red ball, so you have red ball in both the bags, right? So first you will pick up a bag and then red color ball from for that particular bag. So I have to take all the possible cases or not. So first finding one of the bags. अब कितने बैग हैं? पहले बैग की प्रोबेबिलिटी और उसमें से रेड बॉल निकालने की 4/11, 7 + 4 11. Or I can take second bag and then I can get red ball from there also 5/13. Yes, या तो फर्स्ट बैग पिक करूंगा या सेकंड बैग पिक करूंगा और उसमें से रेड बॉल निकालेंगे. तो ये हुआ डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी. इसमें कुछ नहीं करना है, बैग पकड़ना है, उसमें से रेड बॉल निकालना है. अब रिवर्स प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? दिस इज डन, ये वाला. व्हाट हैपन इन रिवर्स प्रोबेबिलिटी? तो इस आदमी ने सोचा था, तुम रास्ते में जा रहे हो, कोई एक बॉल मिला और सामने 2 बैग पड़े हुए थे. अंडरस्टैंड द सिचुएशन. तुम जा रहे हो, एक बॉल पड़ा हुआ मिला, सामने 2 बैग रखे थे. तो कोई आदमी आता है, वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विच यू हैव गॉट इज फ्रॉम बैग 2 या बैग 1, जो भी है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स प्रोबेबिलिटी. क्योंकि पहले हमने क्या किया, बैग सेलेक्ट किया फिर रेड बॉल. अब पहले रेड बॉल आ गई, अब वो बैग 2 से आई है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो इसको लिखते कैसे हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी में? जो इवेंट हो जाता है डिनोमिनेटर में लिखते हैं, राइट, स्लैश लगा के. कौन सा इवेंट हो गया? रेड बॉल वाला, राइट? अब रेड बॉल कहां से आनी चाहिए थी? बैग 2 से, राइट? तो इनमें से 2 केसेस हैं. सेकंड बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये है, ये ऊपर आ जाएगा. नीचे ये पूरे केसेस आएंगे क्योंकि ये टोटल है, इसी में से एक फेवरेबल निकाल के नीचे टोटल आ जाता है. टोटल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 4/11 प्लस 2 इंटू 5/. एग्जैक्टली रिवर्स प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड बेस थ्योरम. देखो अभी सिमिलर टिप चीज किया था हमने, आनंद अंबानी वाला एग्जांपल. ऊपर में एक फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल आउटकम. दिस इज कॉल्ड रिवर्स प्रोबेबिलिटी. इसी को बोलते हैं बेस थ्योरम. हाँ, बैक किसी से भी आया, लेकिन सेकंड बैक से आया है तो सेकंड बैक 1/2 और उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी. उस केस में बॉल आइडेंटिकल है, सेम कलर है, डिफरेंट कलर है, वो सब पता होना चाहिए. यहाँ तो पर्टिकुलर कलर तो मालूम होना चाहिए बॉल का. कलर नहीं पता तो फिर वो आइडेंटिकल केसेस हो जाएंगे. उस केस में पता नहीं लगा सकते. उस केस में मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी वन हो गई. आप बॉल मिली, किस बैग से निकाली, सारे बैग में आइडेंटिकल बॉल है तो किसी बैग से निकाल लो. क्लियर? दिस इज कॉल्ड रिवर्स प्रोबेबिलिटी.
the students, 12th standard student, reverse this is called Bayes theorem or reverse probability, right? So you get types of questions. There are different types of questions in this. One question I'll take and then you can. This is done for Bayes theorem or reverse probability. Let me take one question. Okay. The question is, there are 3 bags, 3 boxes. There are 3 boxes. One box has 2 gold coins. 2 silver coins, 1 gold and 1 silver. Right? There are 2 bags, 3 boxes, sorry. First box has both gold coin, second box has both silver coin, and third box has 1 gold and 1 silver. If I ask you, find the probability, this is box 1, box 2, find the probability that the second coin is a gold coin given that first coin is also a gold coin. Find the probability that second coin is a gold coin given that first coin is also a gold coin. तो ऐसा पॉसिबल किस बॉक्स में होगा? P1 में, उसी में 2 गोल्ड है ना. अब कितने बॉक्सेस तुम्हारे पास? 3. तो न्यूमरेटर में 3 में से एक बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 1/3. और वो बॉक्स ये वाला होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1/3. अब उसमें गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 क्यों? दोनों गोल्ड है. बेस में कौन कौन से केसेस आएंगे? ये और ये. तो इसका क्या है? प्लस that's your answer. Understood? इसमें एक ट्री डायग्राम भी उससे और इजी हो जाता है. मतलब all of you, I hope all of you understood it. इस तरफ समझ आया? फॉरवर्ड कर देना इसको.